ਜਾਮ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਸੜਕ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਕਾਰਨ 27 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਮੁਨਾਸਿਬ ਹੈ। ਉਧਰ ਜਾਮ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਸੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕਰੀਬ 5 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 29 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ तेज कर देंगे। चरण सिंह जी कितने जा रहे हैं? ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। कितना टाइम हो गया? 1 ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। की महसूस करते हो? ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਪਬਲਿਕ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਮ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਿਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਮਿਲ ਦੇ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੋਡ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਰਹਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। हवा का प्रदूषण ते पानी का प्रदूषण ਉਹਨੂੰ खत्म कराने ਲਈ मिल ਨੂੰ बंद कराने ਦਾ ਇਸ जगह ਤੇ संघर्ष कमेटी ਦਾ ਧਰਨਾ ਸੀ ਸਵੇਰ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਮਿਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦੀ ਸਲੱਜ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਗਾੜਾ ਮਾਦਾ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਬਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹਣ ਵਾ ਉਹਨ ਥੱਲੇ ਦਾ ਲਗਭਗ 3 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਤਾ, ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਨਾਲ, ਔਰ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਮੇਰੇ 'ਚ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆ ਜੋ ਮਿਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਗੇ, ਸੁਣੋਗੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੋਪੜ ਦੀ ਘਨੌਲੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਟੋਨ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਲਈ 2 ਕਾਨੂੰਨ ਵਰਤ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਲਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਟਨ 'ਚ ਆਰਡਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਰੋਪੜ ਦਾ ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸੀਲਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਖੁੱਲੇ ਆ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਬੰਦ ਆ, ਜੋ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਆ। मतलब ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਬਸ ਸੀਲਾਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇਤੇ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸੀਲਾਂ ਲਾਉਣ ਉਹ ਆ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਵਰਬਲੀ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੀਲਾਂ ਲਾ ਦਿਓ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕਾਲਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਹਿਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬੀਐਡ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਲਜ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਬਦਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। जो ये पेट में लड़कियों को मारा जा रहा है या दहेज को पीड़ित लड़कियां हैं उन्होंने इस चीज़ की सज़ा मिले और भ्रूण हत्या रोकना एक समय की मांग है। एजुकेशन कॉलेज वालों ने रैली कढ़ी गई है और सारे शहर में रैली जाएगी। देख रहे हैं कि साडे देश विच धीआं दा सत्कार बहुत ही घट रहा है, इसलिए सानू प्रण लेना चाहिए है कि असीं धीआं दा सत्कार ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਧੀਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੜਕੀਆਂ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਲੜਕੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਐਸਜੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਠਿਕਾਣਾ ਨਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ 100 ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਰਾਜਪਥ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਪਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲੇ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੀਰਾ ਸੇਠ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਐਸਟੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਮਾਣ ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਂ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ है। पेरेंट्स इतने अच्छे दिए कि उन्होंने मेरे को इस कॉलेज में एडमिशन करवाई। फिर उसके बाद प्रिंसिपल मैम और सेठ मैम की इंस्पिरेशन से आज मैं जो भी हूँ सिर्फ उनकी वजह से ही हूँ। और मेरे को यहाँ पे बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिला पढ़ने के लिए और अब पढ़ाने में भी वही मज़ा आ रहा है जो पढ़ने में आ रहा था। जो मैंने MSc मैथ्स जो यूनिवर्सिटी कैंपस से की है वो भी मेरे लिए बहुत ही यूज़फुल रहा है अपनी एजुकेशनल अचीवमेंट्स को। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन और मैं हूं यूसुफ अंसारी। बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर घमासान मचा हुआ है। नितिन गडकरी का दोबारा अध्यक्ष बनना लगभग तय माना जा रहा है, लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी इस नाम पर सहमत नहीं है, तो महेश जेठमलानी, यशवंत सिन्हा और राजनाथ सिंह भी अध्यक्ष पद की दौड़ में शामिल हैं। ऐसे में क्या गडकरी की ताजपोशी हो पाएगी, इस बड़े सवाल को लेकर हम न्यूज लाइन में चर्चा करेंगे। लेकिन न्यूज लाइन की शुरुआत करते हैं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री के साथ, जिन्हें शिक्षक भर्ती घोटाले में 10 साल की जेल की सजा हुई है। हम बात कर रहे हैं ओम प्रकाश चौटाला जी की। शिक्षक भर्ती घोटाले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला और उनके बेटे अजय चौटाला को 10 साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही पूर्व सचिव विद्याधर और IAS अधिकारी संजीव कुमार को भी 10 साल की सजा हुई है। ओम प्रकाश चौटाला की इस सजा ने सियासी गलियारे में तूफान खड़ा कर दिया है। सजा के बाद ओम प्रकाश चौटाला न तो कोई चुनाव लड़ सकेंगे और ना ही वोट डाल पाएंगे। हालांकि सजा के फौरन बाद चौटाला के समर्थकों ने हाई कोर्ट का रुख करने का ऐलान किया और इस मुद्दे पर रोहिणी कोर्ट में उन्होंने जमकर हंगामा भी किया। तेरह साल पुराना JBT घोटाला यानी जूनियर बेसिक ट्रेंड टीचर्स की भर्ती में हरियाणा में जो फर्जीवाड़ा हुआ, अब उसका हिसाब किताब हुआ है। कोर्ट ने 16 जनवरी को इस घोटाले से जुड़े चौटाला कुनबे को दोषी ठहराया था। आइए जरा समझ लें कि ये घोटाला था क्या। दरअसल साल 1999 से साल 2000 के बीच हरियाणा में 3206 शिक्षकों की 18 जिलों में भर्ती होनी थी। बतौर जूनियर बेसिक ट्रेंड इन शिक्षकों की भर्ती की गई। आरोप लगे कि तत्कालीन मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की जानकारी में इस भर्ती के दौरान कई नियमों की अनदेखी हुई। ओम प्रकाश चौटाला समेत उनके बेटे अजय चौटाला को मिलाकर कुल 62 लोगों को आरोपी बनाया गया, जिसमें से 6 आरोपियों की मौत हो चुकी है। इस घोटाले की जांच CBI ने की और चौटाला के खिलाफ पुख्ता सबूत इकट्ठे किए। आरोप है कि घोटालेबाजों ने मेरिट लिस्ट में फर्जीवाड़ा किया, अधिकारियों पर गलत दबाव बनाया और मनमाने तरीके से पैसे लेकर टीचरों की नियुक्तियां की। ऐसे लोगों को भी भर्ती किया गया जो इसकी योग्यता ही नहीं रखते थे। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने इस मामले में ओम प्रकाश चौटाला और उनके बेटे अजय चौटाला को 10-10 साल की सजा सुनाई है। कुल मिलाकर इस मामले के 9 दोषियों को 10 साल की सजा सुनाई गई है, जबकि एक आरोपी को 5 साल और बाकी के 45 दोषियों को 4 साल की सजा सुनाई गई है। हालांकि ये भी साफ है कि चौटाला इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट का रुख करेंगे, लेकिन तब तक न तो चौटाला चुनाव लड़ सकते हैं और न ही अपना वोट डाल सकते हैं। ये न्यायालय का निर्णय है और एक भूतपूर्व मुख्यमंत्री को एक भ्रष्टाचार के मामले में इतना दंड है। उम्मीद है जो अन्य राजनेता और नौकरशाह हैं वो वक्त लेंगे और अपने व्यवहार कानून और न्याय की मर्यादा के बीच में रखें।
78 साल की उम्र और 80% शारीरिक विकलांगता के बावजूद ओम प्रकाश चौटाला का हरियाणा की राजनीति में अपना कद है। यकीनन इस घोटाले और इसके नतीजे का असर उनके सियासी कद पर भी पड़ेगा, क्योंकि ये विरोधियों के लिए बोलने का एक अच्छा मौका भी है और चौटाला के पास कहने को कुछ भी नहीं है। नाज शेख, चैनल 1 न्यूज। तो कानून की गाज गिरी है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला पर 10 साल की सजा हुई है। न सिर्फ उन्हें बल्कि उनके बेटे को भी और भी साथ में कई और लोगों को चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और न वोट डाल पाएंगे। ओम प्रकाश चौटाला से पहले भी कई नेता सलाखों के पीछे जा चुके हैं। एक नज़र जरा ऐसे ही नेताओं पर डालते हैं। लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला में जेल गए। हालांकि सजा नहीं सुनाई गई, लेकिन काफ़ी दिन, करीब 6 महीना वो जेल में रहे और उसके बाद जमानत पर बाहर है। मामला भी चल रहा है, जांच सीबीआई उसकी कर रही है। जेल जाने वाले दूसरे नेता मधु कोड़ा है, जो 2G मामले में भी जेल गए और कई और मामलों में, झारखंड में कोयला से जुड़े हुए मामलों के अंदर भी वो जेल गए। उनका भी मामला भी चल रहा है, कई मामलों में फंसे हुए। शिबू सोरेन हत्या के एक आरोप में जेल गए जब वो मंत्री थे केंद्र में, और उस वक्त ये पुराना मामला खुला तो शिबू सोरेन कई दिन भूमिगत हुए, अंडरग्राउंड रहे। उसके बाद प्रधानमंत्री ने बुलाकर उनसे इस्तीफा लिया और बाद में उन्हें जेल जाना पड़ा। बाद में जमानत पर वो भी बाहर है, मामला भी चल रहा है। कई और भी नेता हैं जो जेल गए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री ए राजा जेल गए हैं। कनिमोझी, जो कि डीएमके के प्रमुख एम करुणानिधि की बेटी है, सांसद राज्यसभा में है और वो भी जेल गई है 2G मामले में। 2G मामले में जेल में रही है कनिमोझी। मामला ये भी चल रहा है, सज़ा तो नहीं सुनाई गई लेकिन मामला चल रहा है। जेल जा चुकी हैं, तिहाड़ जेल में रही हैं। जयललिता जमीन घोटाले में जेल गई हैं। सुरेश कलमाड़ी, कॉमनवेल्थ गेम्स में जो घोटाला हुआ था उस मामले में वो काफ़ी दिन जेल में रहकर आए हैं। सीबीआई इस वाले मामले की भी जांच कर रही है। और तो ये थी एक झलक उन नेताओं की जो किसी न किसी मामले में जेल में रहे हैं, तो उनको सज़ा हुई है या मामला चल रहा है और बीच में जेल में गए हैं। सुखराम भी दोषी पाए गए, उनको भी जेल की सज़ा हो चुकी है। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है इंडियन नेशनल लोकदल के एकमात्र सांसद प्रजापति जी हमारे साथ मौजूद हैं, रणवीर सिंह प्रजापति, और बीजेपी के नेता डॉक्टर संबित पात्र हमारे पास मौजूद हैं। तो प्रजापति जी, ये जो आपकी पार्टी के अध्यक्ष को 10 साल की सज़ा हुई है, कितना बड़ा झटका है पार्टी के लिए? निश्चित रूप से पार्टी के लिए झटका है, लेकिन यूपीए की सरकार हमेशा ही सीबीआई का दुरुपयोग करके विरोधियों के ऊपर इस तरह के आरोप लगवा करके उनको फंसाने का काम करती है। और ये एक बात नहीं, अनेक बार आप ये देख लीजिए, आज चौटाला साहब को सीबीआई के दुरुपयोग करके जिस तरह से मामले के अंदर फंसाया गया है, और वो केवल इसलिए क्योंकि हरियाणा प्रदेश के अंदर आज बच्चा ये कह रहा है कि आने वाली सरकार इंडियन नेशनल लोकदल की है। और आज अगर कांग्रेस पार्टी को किसी से डर था तो केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से था। इसीलिए उन्होंने जो है इस तरह के काम करने का काम किया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहले भी ये जो मामला चल रहा है प्रजापति जी, ये तो 1999 का मामला है और यूपीए सरकार तो 2004 में बनी है, तो मामला तो पहले से चल रहा था, जांच तो इसकी पहले से चल रही थी। 2000 में नहीं, संजीव कुमार जो डायरेक्टर था वो 2003 के अंदर वो सुप्रीम कोर्ट में गए थे और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था सीबीआई जांच का। लेकिन उसके बाद सरकार जाने के बाद में मेरे ख्याल से, जहां तक मैं समझता हूं, 2008 के अंदर ये जो है आरोप जो है इनके ऊपर साबित किए थे। ये जो मामला चल रहा है, ये जांच चल रही है एनडीए सरकार के जमाने में, और उस वक्त एनडीए को सपोर्ट कर रहे थे ओम प्रकाश चौटाला जी। और मैं आपको बता रहा हूं कि ये एनडीए के टाइम की है। 2003 के अंदर जी, जब एनडीए की सरकार थी जी, तब सुप्रीम कोर्ट में
जो संजीव कुमार, जिसको खुद को आज जेल हुई है, वो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में गए थे जी, और उन्होंने करी थी। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सीबीआई जांच के आदेश जो है सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे, लेकिन जो सीबीआई जो है वो सरकार के अधीन है जी, और जो आरोप जो तय किए गए वो 2008 में तय किए गए, उस टाइम यूपीए की सरकार थी जी। तो क्या ये माना जाए डॉक्टर साहब, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई की जांच शुरू हुई है और उनका आरोप है कि यूपीए सरकार ने कराया है, तो क्या ये माना जाए कि यूपीए सरकार जब नहीं थी तो चूंकि एनडीए सरकार का हिस्सा थे ओम प्रकाश चौटाला, और इसलिए एनडीए की सरकार में सीबीआई ने जांच नहीं की? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं टिप्पणी करना चाहूँगा। सबसे मुख्य विषय है, यह एक न्यायिक प्रक्रिया है। आज सीबीआई की अदालत ने रोहिणी कोर्ट से ये फैसला सुनाया है, तो न्याय पे मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। और जहाँ तक आपने सीबीआई का विषय पूछा, तो मैं जो समझता हूँ कि 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को आदेश दिया कि आप इस विषय पर जांच करें। तो 2003 से जांच शुरू हुई सीबीआई के माध्यम से, और 2008 को सीबीआई ने अपने जांच की रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल किया जी। तो इस कारण से न्यायिक प्रक्रिया पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। जी, अच्छी बात है, न्यायिक प्रक्रिया पर टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन अभी चौटाला जी आपके साथ, पार्टी के साथ रहे हैं, तो किस तरह से राजनीतिक उलटफेर हो सकता है हरियाणा में? क्या इसका फॉलोआउट क्या होगा? देखिए, यह तो स्वाभाविक रूप से राजनीतिक क्षेत्र में जो पंडित हैं हरियाणा के, वही बता पाएंगे कि किस प्रकार से चौटाला जी के जेल जाने से कोई समीकरण वहां बिगड़ेगा या बनेगा। वहाँ कुलदीप बिश्नोई जी बता पाएंगे, कांग्रेस के नेता वहाँ बता पाएंगे। किंतु यहाँ केंद्र से यही लगता है, मेरा यही कहना है भाजपा की तरफ से, कि जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, अगर उनको इस प्रकार की सजा होती है तो यह एक डिटरेंट के रूप में काम करता है। आगे से नेता हो या नौकरशाह हो, उन्हें सोचकर काम करना पड़ेगा कि अगर हम किसी प्रकार का भ्रष्टाचार करेंगे तो इसी प्रकार की सजा मिलेगी। इसलिए सभी नेताओं के लिए यह एक चेतावनी है। प्रजापति जी, डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि चेतावनी है ये जो सजा हुई है चौटाला साहब को, और आगे के नेता शायद गड़बड़ घोटाला करते हुए डरेंगे जब वो सत्ता में होंगे। क्या कहेंगे आप मैं पीछे जाना चाहूंगा। अभी इन्होंने कहा कि कुलदीप बिश्नोई जी बताएंगे या वो जो दूसरे लोग हैं वो बताएंगे। आप हरियाणा से आते हैं, आप बताइए। इसी तरह का जो मामला था चौधरी भजनलाल जी के टाइम में, कुलदीप बिश्नोई जी के पिताजी वो हरियाणा के सीएम रहे, और उसके टाइम में जो 1600 पुलिसकर्मी लगे, वो 1600 पुलिसकर्मी कोर्ट ने हटाए, और उनके एक विशेष हलके के तकरीबन जो है लगभग आधे जो उसमें से पुलिसकर्मी थे, एक हलके से लगे हुए थे। उनको तो जो है कहीं कोई उन्होंने कोर्ट ने सजा नहीं दी। और उसके बाद में चौधरी बंसीलाल जी हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने जो लगाए वो भी हटे। और अब मौजूदा सरकार जो कांग्रेस की सरकार है, माननीय हुड्डा साहब जो है वो मुख्यमंत्री हैं, और उनके टाइम में अभी 1983 पीटीआई टीचर्स की भर्ती हुई जी, और उनको भी कोर्ट ने नोटिस किया है जी। उनके ऊपर कोई एक्शन इसलिए नहीं हुआ कि वो यूपीए के साथ जो है वो रहे हैं, कांग्रेस के साथ जो है वो रहे हैं। चाहे वो भजनलाल जी थे, कांग्रेस के हिस्सा ही थे, उस टाइम कांग्रेस से मुख्यमंत्री थे। चाहे बंसीलाल है, उनका भी संबंध कांग्रेस से रहा था, और अब जो है कांग्रेस के टाइम में उनके खिलाफ कुछ नहीं हुआ, वो जेल नहीं गए। केवल चौटाला साहब को इस तरह के षड्यंत्र से, साजिश के तहत उनके ऊपर इस तरह के मामले बना करके आज उन्होंने जो है कांग्रेस पार्टी भी और सीबीआई के माध्यम से एक साजिश के तहत वो शिकार हुए हैं। निश्चित रूप से हम इसके खिलाफ जो है ऊपरी कोर्ट में जाएंगे, और वहां हमें पूरी उम्मीद है कि न्यायालय से जो है वो न्याय मिलेगा। न्यायालय से पूरी उम्मीद है आपको कि न्याय मिलेगा, लेकिन आपका फिर भी कहना है कि इसमें राजनीति हुई और बाकी लोगों को जो कि वो कांग्रेस से संबंधित है इसलिए सजा नहीं हुआ। लेकिन मामला तो अभी चल ही रहा है ना, क्यों डॉक्टर साहब? मैंने जैसे अगर न्याय पे भरोसा है आपको तो ये भरोसा रखना चाहिए कि चाहे वो बंसीलाल जी के जमाने में हुआ हो घोटाला, चाहे वो हुड्डा जी के जमाने में हुआ हो, या प्रक्रिया है
बताना न्यायिक प्रक्रिया पे मैं अपनी तरफ से कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। जज साहब ने जो भी फैसला सुनाया है वो आदर योग्य है, और न्यायिक प्रक्रिया पे किस प्रकार की टिप्पणी होनी चाहिए, अपील करने की जो विषय है वो सबके पास हासिल है। आप अपीलेट कोर्ट पे जा सकते हैं, हाई कोर्ट पे जा ही रहे हैं मेरे ख्याल से। नहीं, वो मैं कह रहा हूँ। लेकिन प्रजापति जी जो 6 साल तक है कि वोट नहीं डाल पाएंगे चौटाला जी और चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे, तो ऐसे में तो मुझे लगता है कि INLD का जो जनाधार है वो पूरा सुकड़ जाएगा, क्योंकि चौटाला जी भी जेल में रहेंगे और अजय चौटाला भी, दोनों को हमारी पार्टी प्रजातांत्रिक पार्टी है, हम न्याय में विश्वास रखते हैं। और हम जब कोर्ट में जाएंगे, जब ये कोई लास्ट अदालत नहीं थी, ये शुरू की अदालत थी, और जब ऊपरी अदालत के अंदर जाएंगे और जब इसकी फैसला निरस्त हो जाएगा तो फिर निश्चित रूप से वो वोट भी डालेंगे, वो चुनाव भी लड़ेंगे और वो जो है सारे काम करेंगे। लेकिन जो चुनाव अभी होने वाले हैं, अगले जो चुनाव आएंगे विधानसभा के बहुत जल्द होने वाले हैं, उससे पहले लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में एक आपके नेता अगर जेल में रहते हैं तो किस तरह से पार्टी खड़ी हो पाएगी, किस तरह से चुनाव लड़ पाएंगे? एक बड़ा चैलेंज है आपके सामने। नहीं, वो जो मैं बता रहा हूँ कि हमारी पार्टी प्रजातांत्रिक पार्टी है, अनेक है। हमारे आज भी टोटल 90 विधायकों में से 31 विधायक हमारी पार्टी के आज भी हैं, और जो उनके बाद जो पार्टी को संभालने वाले लीडर्स हैं वो भी हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, हमें पूरी उम्मीद है न्यायालय से कि हम उसके अंदर अपील दाखिल करेंगे, और जब वो अपील एक्सेप्ट हो जाएगी तो वो कोर्ट जो है इनका फैसला निरस्त करेगी। हमें पूरी उम्मीद है जो वो निरस्त करेगी तो फिर निश्चित रूप से वो हमारे बीच में होंगे, वो चुनाव भी लड़ेंगे, वोट भी डालेंगे, सारे काम होंगे। प्रजापति जी, अभी हमारे साथ कांग्रेस नेता शादीलाल बत्रा जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ ओबी पर, और हम बत्रा जी चैनल 1 में आपका स्वागत है। आज जो चौटाला साहब को 10 साल की जेल हुई है, इस फैसले को किस नजर से आप देखते हैं? धन्यवाद। मैं सबसे पहले सब अपने मित्र प्रजापति जी को कहना चाहूँगा जी कि न्यायपालिका ने आज फैसला दिया है जो हमारा एक जड़ है और जिस पर हमें अति विश्वास है। आज उन्होंने साबित कर दिया कि हरियाणा का हर नागरिक, छोटा हो बड़ा हो, न्यायपालिका के सामने सम्मान है, और जो उसने कर्म किए हैं उनके लिए उनको सजा भुगतनी होगी। फैसला किया, जब तक ये फैसला हायर कोर्ट से सेटिस्फाइड नहीं होता तब तक ये फैसला मान्य है, और न्यायपालिका पर हमें टिप्पणी करने से पहले बचना चाहिए, सोचना चाहिए कि हमारी प्रणाली है क्या। मेरे दोस्त कह रहे थे कि 2008 में जब चार्जशीट फाइल हुई तो उस वक्त यूपीए की सरकार थी, वो भूल गए कि केस कब शुरू हुआ था। यहाँ एनडीए की सरकार थी और नीचे हरियाणा में खुद मुख्यमंत्री थे। मुख्यमंत्री की बात, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया सीबीआई से इंक्वायरी हो। किसी का भी कोई एक भी शब्द नहीं था कि सीबीआई से इंक्वायरी ना हो, किस एजेंसी से हो। सीबीआई ने इंक्वायरी की, इंक्वायरी के पास वो लिस्टें जो पहले बनाई गई थी और वो लिस्टें जो बाद में बनाई गई थी सामने आ गई, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आ गया। इवन IAS ऑफिसर जो हैं उन्होंने बयान दिए, और बयान देने के बाद ये कहा कि हमारे साथ इतनी जबरदस्ती हुई और ये कराया गया। तो पहले जो भ्रष्टाचार की बात होती थी, आज न्यायपालिका ने उस पर मोहर लगा दी है, और उस मोहर जो फैसला है जब तक वो सेटिस्फाई नहीं होता, हरियाणा की जनता उसको मानती है। हरियाणा की जनता न्यायपालिका का आदर और मान करती है, और मैं समझता हूँ कि आज के दिन उनका न्यायपालिका में विश्वास और सोच बहुत बढ़ गया है। वो कहते हैं कि न्यायपालिका ही ऐसा है, आने वाले टाइम में एक मैं ये नहीं कह रहा न्यायपालिका पर हमारा विश्वास है बत्रा जी, लेकिन कहीं न कहीं साजिश के तहत मेरी बात सुनिए, यूं नहीं विश्वास है तो विश्वास से मानिए। ये ना सुन लीजिए, कांग्रेस ने क्या कराई, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, सीबीआई की इंक्वायरी थी और न्यायपालिका ने मोहर लगाई। कांग्रेस का कहीं रोल नहीं था। नहीं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इससे पहले भी बत्रा जी, आपको ध्यान होगा, आपकी सरकार के मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल जी थे। क्या कर रहे हैं? और उनके टाइम में, आज की बात करिए ना, उसके टाइम में भी 1600 दिन तक 16 आपकी सरकार के अंदर, आपकी अपनी सरकार के अंदर भी 1983 न्यायपालिका ने जो शादीलाल जी इल्जाम किसी पे लगा दो, कुछ ही कह दो। नहीं, इल्जाम नहीं लगा रहा, शादीलाल जी सुनिए, आप जो बात हुई है मैं वही कह रहा हूं, इल्जाम नहीं लगा रहा। आप या तो इनकार करिए इस बात से
क्या क्या पहले हटे नहीं क्या? 1600 पुलिसकर्मी नहीं हटे क्या कांग्रेस के टाइम में लगे हुए? और उसके बाद में चौधरी किसी के वो क्या कर रहे हैं? और अभी ग्राउंड पे भजनलाल जी ने किए थे, अभी आपके सरकार के टाइम में टेक्निकल ग्राउंड थे। ये भ्रष्टाचार के टाइम पे गए हैं कि भ्रष्टाचार में इन्होंने लिप्त थे, और भ्रष्टाचार में आने के बाद जो इन्होंने लिस्टें तब्दील करी, भ्रष्टाचार की बात अगर कांग्रेस के साथी कर रहे हैं और 120 बीघा शाहजीलाल जी सुनिए, मुख्यमंत्री को नहीं मिली 10 साल की सजा। बत्रा जी, प्रजापति जी, भ्रष्टाचार की बात अगर कांग्रेस के लोग ही कर रहे हैं तो आज देश और प्रदेश की जनता जानती है कि क्या क्या भ्रष्टाचार लगातार हो रहे हैं। वो कानून की उल्लंघना करते हैं तो ऐसी सजा हो सकती है। नहीं, वो आज हर प्रदेश के देश के सारे लोग ये जानते हैं कि क्या क्या भ्रष्टाचार अब आपकी सरकार में हो रहे हैं। वो सर्वविदित है, मैं कहना वो सर्वविदित है। आप इसको प्रजापति जी अगर शाहजीलाल जी क्या फैसला कर दिया? शाहजीलाल जी, आपसे गुजारिश है कि आप थोड़ा सा संयम बरतिएगा। प्रजापति जी, आपने कहा कि जो मौजूदा सरकार है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री है, उसके अंदर बहुत सारे घोटाले हो रहे हैं, सब जानते हैं, जग जाहिर है। तो आप उन घोटालों को लेकर के जनता के बीच क्यों नहीं जाते हैं, मामला क्यों नहीं उठाते हैं, या कोर्ट में क्यों नहीं जाते? हमने तो हमेशा ही जनता के बीच में गए हैं, और आज इसीलिए हरियाणा प्रदेश के अंदर जो आज इनेलो की स्थिति है, आज हर बच्चा ये कह रहा है कि आने वाली सरकार इंडियन नेशनल लोकदल की है, और इसीलिए कांग्रेस पार्टी को केवल और केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से डर था। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि इन्होंने सीबीआई का दुरुपयोग करके इस तरह के जो है जालसाजी करके और चौटाला साहब के जो है इस तरह का आरोप लगाने की कोशिश करी है, और इस तरह के न्यायालय को भी जो है एक तरह से मैं ये कहूंगा कि उसके अंदर जो इकट्ठे किए गए सबूत वो लाने के काम किया है, जो झूठे सबूत लाने का काम किया है। इसीलिए आज जो है इस तरह का जो फैसला आया है, निश्चित रूप से हमें इसको लेकर के जो है ऊपरी अदालत के अंदर जाएंगे। जी शाहजीलाल जी, अभी आपने सुना जो प्रजापति जी आप पर आरोप लगा रहे हैं कि इनका कहना है कि सीबीआई को एक इंस्ट्रूमेंट की तरह इस्तेमाल किया है यूपीए गवर्नमेंट ने, क्या कहेंगे आप? ऐसा है कि ये इनकी सोच है, और सोच बताती है कि इनका प्रजातंत्र में और न्यायपालिका में कितना विश्वास है। ये सोच, और इसी सोच के बदले में अपने आप को कहें कि हम स्वच्छ हैं, केवल हरियाणा की बात नहीं है कि नहीं आप भ्रष्टाचार में लिप्त हो, तो क्या हिसाब होगा? जहां भी क्षेत्रीय पार्टी उभर के आती है, चाहे वो यूपी के अंदर मायावती जी की बात हो, स्वयं और जो है ना, और चाहे जयललिता जी की बात हो, चाहे ममता जी की बात हो, हरियाणा की जनता क्या कह रही है, किसी को भी इन्होंने जो है बचने का काम नहीं किया, और वो सारी चीजें देश की जनता के सामने है। जी प्रजापति जी, बत्रा जी थोड़ा निश्चिंत हो, बत्रा जी थोड़ा संयम रखिए। हमारे साथ स्वतंत्र है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार ओमकार चौधरी जुड़ गए हैं, जो कि उन्होंने हरिभूमि अखबार के संपादक वरिष्ठ पत्रकार हैं। चौधरी साहब, जो आज चौटाला अजय ओम प्रकाश चौटाला और अजय चौटाला को 10 साल की सजा हुई है, उस पर प्रजापति जी आईएनएलडी के एमपी है, उनका कहना है कि केंद्र सरकार ने इंस्ट्रूमेंट की तरह सीबीआई को इस्तेमाल किया है, जबकि कांग्रेस का कहना है कि साहब ये न्याय की जीत है। क्या कहेंगे आप? ओमकार जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी। जो आज ओम प्रकाश चौटाला और अजय चौटाला को सजा हुई है 10 साल की, किस नजर से इसको देखते हैं? हमारे साथ रणवीर सिंह प्रजापति हैं, आईएनएलडी के एमपी, उनका कहना है कि केंद्र सरकार ने सीबीआई को इंस्ट्रूमेंट की तरह इस्तेमाल किया है। देखिए, फैक्चुअली ये ठीक नहीं है। हकीकत ये है कि 2003 में जब सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को इसकी जांच के आदेश दिए थे, उस समय केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे जी, और चौटाला साहब हरियाणा के चीफ मिनिस्टर थे। 7-8 साल सीबीआई को इस पूरी जांच पड़ताल में लगे और आरोप पत्र उसने दाखिल किया है। तो ये कहना कि ये कांग्रेस ने सीबीआई का इस्तेमाल किया है, मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। अच्छा, इसके क्या राजनीतिक परिणाम इसके क्या होंगे? हरियाणा की राजनीति में किस तरह का बदलाव होगा इस फैसले के बाद? देखिए, चौधरी देवीलाल हरियाणा के बहुत सम्मानित लीडर रहे हैं, और ओम प्रकाश चौटाला जो उनके पुत्र हैं वो उन्हीं के नाम पर राजनीति करते रहे हैं। 2001 में चौधरी देवीलाल का देहावसान हुआ था,
तो 12 साल हो गए हैं। इन 12 सालों में हरियाणा में 2 लोकसभा के चुनाव हुए हैं और 2 विधानसभा के चुनाव हुए हैं। दोनों लोकसभा चुनाव में 2004 वाले में भी और 2009 में भी INLD को एक भी सीट नहीं मिली जी। इसका मतलब ये है कि देवीलाल जी के जाने का बड़ा बुरा असर इनकी संभावनाओं पर और राजनीति पर पड़ा है। 2005 तक चौटाला साहब सत्ता में थे हरियाणा की, और उसके बाद से ये भी लगातार सत्ता से बाहर हैं जी। 2005 में तो हालत ये हो गई थी कि केवल 9 सीटें इनकी आई थी जी, और 9 सीटों में भी 8 रिजर्व सीटें थी। केवल एक सामान्य सीट चौटाला साहब ने रोड़ी वाली जीती थी जी। 2009 के इलेक्शन में इन्होंने कमबैक जरूर किया है, 31 सीटें जीती थी, लेकिन 2009 में भी ये इसलिए नाकाम रहे सत्ता में आने के लिए कि बीजेपी से इन्होंने समझौता नहीं किया जी। ये जिद पर अड़े रहे। बीजेपी चाहती थी कि वहाँ उनको 29 सीटों के बजाय ये 40 के आसपास सीटें दें, लेकिन इन्होंने सुषमा स्वराज के साथ मिसबिहेव किया था चौटाला साहब ने, और मीटिंग से उठ करके खड़े हो गए थे। तो इसके बाद इन दोनों का जो गठबंधन था वो टूट गया था जी। आज चौटाला साहब और उनकी पार्टी के नेता भी ये मानते हैं कि 2009 में अगर जिद नहीं दिखाई गई होती और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़े होते तो 2009 अक्टूबर में चीफ मिनिस्टर हुड्डा साहब नहीं बनते, चौटाला साहब बनते। तो उन्होंने अपना बड़ा नुकसान किया था 2009 में। बड़ा नुकसान किया था। तो क्या लगता है कि जब चौटाला साहब अगर जेल में होंगे और अजय चौटाला भी जेल में होंगे तो पार्टी आगे कैसे बढ़ पाएगी? और ऐसी स्थिति में क्या बीजेपी समझौता करेगी, अपील करेंगे, जमानत की अर्जी देंगे जी, और उसके बाद इनको जमानत मिलेगी, ये बाहर आएंगे जी। और हाई कोर्ट में भी अगर सुनवाई में इनको कन्विक्ट किया गया जी, तो इनके सामने अभी सुप्रीम कोर्ट जाने का ऑप्शन होगा जी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी अगर सजा हुई तब ये परमानेंटली अपनी सजा काटने के लिए जेल में जाएंगे। तो मुझे लगता है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केसों की सुनवाई में समय लगेगा। तो सर्वोच्च न्यायालय से जो अंतिम फैसला आना है उसमें चूंकि अभी समय है, तो मुझे लगता है कि 2014 के इलेक्शन में चौटाला साहब पार्टी को लीड करेंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है यूसुफ भाई कि हमने देखा है 2009 के चुनाव में समाजवादी पार्टी यूपी से संजय दत्त को चुनाव लड़ाना चाहती थी जी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस समय उनको चुनाव लड़ने की इजाज़त नहीं दी, ये कहते हुए कि निचली अदालत ने संजय दत्त को एक मामले में कन्विक्ट किया है। तो अगर ये 2014 में दोनों पिता पुत्र चुनाव लड़ने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इनको इसकी इजाज़त ना दे जी। तो वो लीड तो कर सकते हैं लेकिन शायद चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो क्या ऐसी पोजीशन में बीजेपी INLD के साथ किसी तरह का तालमेल करेगी? पूछते हैं डॉक्टर संबित पात्र जी से। जो डॉक्टर साहब, देखिए इस पर क्या विचार रहेगा, ये पार्टी का आला कमान जो हमारा है इस पर चिंतन करके इसके पश्चात ही विषय को आगे बढ़ाएंगे। अभी तो बहुत प्रीमेच्योर स्टेज पर पूरा विषय है, किंतु भारतीय जनता पार्टी एक विषय में बहुत क्लियर है कि हम कभी भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं देते हैं, और जो भ्रष्टाचार को अपने यहाँ पनाह देते हैं या बढ़ावा देते हैं उनका साथ भी नहीं देते हैं। आगे की रणनीति जो भी है वह आला कमान तय करेगी। अभी कुलदीप बिश्नोई जी का बयान आया है कि हरियाणा से INLD खत्म हो चुकी है। इस पर एक हम टिप्पणी लेंगे रणवीर सिंह प्रजापति जी की। प्रजापति जी क्या कहेंगे आप? ऐसा है, ये तो वो लोग बात कर रहे हैं जिनकी दुकान अभी खुली ही नहीं और वो ये कह रहे हैं कि INLD खत्म हो गई। उनको ये पता होना चाहिए कि उनकी सीट आज केवल एक MLA की है और एक MP की है, और वो लोग ये कह रहे हैं। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, अभी ओंकार जी कह रहे थे कि मिसबिहेव किया, मिसबिहेव नहीं किया। बीजेपी अपने अड़ियल रवैये पे थी उस टाइम, उन्होंने बराबर की सीटें मांगी, जबकि आज हमने अलग लड़ करके हमारी 31 नहीं 31 प्लस 1 हमारा जो अकाली दल की सीट पे लड़ा है, 32 सीटें हमारी हरियाणा प्रदेश के अंदर आई, और जबकि बीजेपी की जो है मेरे ख्याल से 4 सीटें आई। तो हम कैसे उनको बराबर की सीट दे देते? तो अड़ियल रवैया चौटाला साहब का नहीं था, अड़ियल रवैया उस मामले में बीजेपी का था। और जहां तक बात आगे की है तो आगे कुलदीप बिश्नोई जी का तो मैंने पहले बताया। कुलदीप बिश्नोई जी आज बात करें भ्रष्टाचार की जी। आज भ्रष्टाचार अगर हरियाणा में किसी ने शुरुआत की तो मैं पीछे ज्यादा नहीं जाना चाहूंगा
किसने की वो हरियाणा प्रदेश की जनता जानती है जी। और प्रजापति जी एक छोटी टिप्पणी शादीलाल जी से ले लेते हैं। शादीलाल जी, जो हालात बन गए और जो विश्लेषण अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार ओमकार जी ने दिया, उसके हिसाब से देखा जाए तो कांग्रेस की बल्ले बल्ले है और अगली बार कांग्रेस की हैट्रिक लगेगी हरियाणा में। ऐसा है कि हरियाणा की जनता बड़ी जागरूक है जी, और वो समझती है कि उनके हित कहाँ सुरक्षित हैं, और वो भ्रष्टाचार से लिप्त व्यक्तियों को कभी भी तरजीह नहीं देती, कभी प्रेफरेंस नहीं देती। आज जब तक ये भ्रष्टाचार की जो स्टैंप है ये नहीं हटती, मैं नहीं समझता कि कोई ये क्लेम करे कि मेरी सजा गलत हुई है, कोई ये क्लेम करे कि मैं ऊपर से बरी हो जाऊंगा, कोई ये क्लेम करे कि सुप्रीम कोर्ट मुझे इजाजत दे देगी। ये सारी संभावनाएं सोची हैं, कोई इसमें बात दम नहीं। बत्रा साहब तो आगे की बात कर रहे हैं। आज भी बत्रा साहब, आपकी पार्टी को हरियाणा की जनता ने बहुमत नहीं दिया। हरियाणा के जनता ने आप छोड़िए इन बात को, शादीलाल किस तरह से आप लोगों से फालतू थी। शादीलाल जी, आपका कहना शायद सही होगा कि आप कोई उंगली तक खड़ी नहीं कर सकते, क्लेम कोई नहीं कर सकता कि वो ऊपर से बरी हो जाएंगे, लेकिन उम्मीद तो कर ही सकते हैं। प्रजापति जी और शादीलाल जी, आप इस चर्चा में शामिल हुए, आपका दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और अब वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे बीजेपी में अध्यक्ष पद को लेकर मचे घमासान की। ब्रेक के बाद फौरन लौटते हैं, आप कहीं मत जाएगा। दोनों मेहमान का शुक्रिया, और डॉक्टर समित पात्र और ओमकार चौधरी हमारे साथ बने रहेंगे। इंडिया लिमिटेड पेश करते हैं पर्ल्स रेजिडेंसी मोहाली, पर्ल्स सिटी मोहाली, पर्ल्स रॉयल गार्डन सीहोर, पर्ल्स गेटवे मदुरई, पर्ल्स टाउनशिप भटिंडा, पर्ल्स रिवेरा कोचीन, पर्ल्स गेटवे टावर नोएडा और पर्ल्स कॉर्पोरेट एंड डब्ल्यू मॉल न्यू दिल्ली। प्रोजेक्ट्स ऑफ PACL इंडिया लिमिटेड। PACL में ग्राहकों का हित सुरक्षित, कंपनी अपने दायित्वों का निर्वाह करने में पूर्णतः सक्षम। आधिकारिक तौर पर पुष्टि। कुंभ प्रयाग 2013 के शुभ अवसर पर आपका हार्दिक स्वागत है। ऐसा परमानंद बैकुंठ में भी नहीं जो प्रयाग की धरती पर सभी संत, भक्त और भगवंतों द्वारा सुशोभित हो रहा है। कुंभ की तारीख 14 जनवरी से 10 मार्च। इस माघ मास में पुण्यों के भागीदार बने, कुंभ में आए, पुण्य कमाएं। स्वर्णिम मध्य प्रदेश की पहचान, समृद्ध किसान। कृषि को लाभकारी धंधा बनाने का मुख्यमंत्री का सपना अब हुआ साकार। 0% ब्याज दर पर 65 लाख किसान परिवारों को लाभ पहुंचाने हेतु 10,000 करोड़ के फसल ऋण वितरण का लक्ष्य। अपेक्स बैंक। देखिए रोजाना सुबह 6 बजे अलिफ टाइम, सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। मकसद वजूदे कायनात। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया गया, लेकिन वो आग इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जला नहीं सकी। मिटा दो अपनी हस्ती को गर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। किसी आवाज को नहीं सुन रहे? कौन सी आवाज? किसी बच्चे की आवाज। जी हाँ, कुरान पाक सदियों से हमारी रहनुमाई कर रहा है। शायद दुनिया में कोई भी इसे फरामोश नहीं कर सकता। हिंदुस्तान की तारीख में पहली बार इस रोशन हकीकत को लेकर हाजिर हैं हम। देखिए हमारी खुसूसी पेशकश, सदाए हक, सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। किसने रची साजिश, कौन बना शिकार, किसने किया जुल्म, कौन बना कातिल, किसने लूटी असमत, कौन बना हैवान। सभी गुत्थियां सुलझाएंगे हम। देखिए तहकीकात, सोमवार से शनिवार रात 10:30 बजे, सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। नारी पर हो अब कोई घात, नहीं करेंगे हम बर्दाश्त। बहुत हुई सिसकी,
और हिचकी। अब टूटी है उसकी चुप्पी, बुलंद हुई उसकी आवाज। खामोश खड़ा क्यों देश समाज, बेखौफ कहो तुम हक की बात। चैनल 1 है तुम्हारे साथ। चैनल 1 न्यूज महिलाओं पर होने वाले किसी भी तरह के अत्याचार की निंदा करता है और हर समय ऐसे अपराध के खिलाफ आपकी बुलंद आवाज के साथ है। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है न्यूज लाइन में। और अब हम बात करेंगे बीजेपी में अध्यक्ष पद को लेकर मचे घमासान की। बीजेपी का दोबारा अध्यक्ष बनने का सपना पाले नितिन गडकरी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी गडकरी से नाराज हैं, तो राजनाथ सिंह का नाम भी गडकरी के रास्ते में रोड़ा है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या गडकरी की दोबारा ताजपोशी हो पाएगी? बुधवार को बीजेपी अध्यक्ष पद का चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले दोबारा बीजेपी अध्यक्ष पद बनने का मंसूबा पाले नितिन गडकरी की मुश्किलें मंगलवार को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बढ़ा दी। गडकरी की कंपनी आपूर्ति पर आईटी ने सर्वे किया। ये सर्वे पूर्ति ग्रुप में निवेश करने वाली कंपनियों पर किया गया। बीजेपी ने आईटी के सर्वे पर सवाल निशान लगाया और कहा कि सब कुछ केंद्र सरकार के इशारे पर चल रहा है। इनकम टैक्स विभाग के द्वारा जो पूर्ति ग्रुप समूह के ऊपर रेड हो रहा है वो वेंडेटा है और पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। ये हम भी कहना चाहेंगे कि अध्यक्ष जी ने पूर्ति ग्रुप से 1.5 वर्ष पहले ही इस्तीफा दे दिया है। महेश जेठमलानी के बाद अब यशवंत सिन्हा ने भी अध्यक्ष पद के लिए नामांकन पत्र मांगा है। यशवंत सिन्हा जी ने अथॉरिटी लेटर भेज करके उनके एक सहयोगी को भेजा और अथॉरिटी लेटर के साथ में उन्होंने सक्रिय सदस्य होने की सूची भी साथ में लगाई और नामांकन पत्र की प्रति मांगी। मैंने उनको नामांकन पत्र की प्रति दे दी। सच्चाई ये भी है कि पार्टी के बड़े नेता लालकृष्ण आडवाणी गडकरी को दोबारा अध्यक्ष बनाए जाने के निर्णय से सहमत नहीं है और वो पहले ही सुषमा स्वराज के नाम को आगे बढ़ा चुके हैं। उधर गडकरी के विकल्प के तौर पर संघ की पसंद राजनाथ सिंह है, लेकिन आडवाणी इसके लिए तैयार होंगे, ये बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि बीजेपी के संविधान के मुताबिक अगर पार्टी अध्यक्ष बनने के लिए कोई नामांकन करता है तो उसे 5 राज्यों के 20-20 बीजेपी सदस्यों के हस्ताक्षर की जरूरत पड़ती है। यानी नामांकन करने वाले उम्मीदवार को 100 सदस्यों के हस्ताक्षर की जरूरत है। अब वक्त काफी कम है। महेश जेठमलानी और यशवंत सिन्हा को नामांकन भरने के लिए इतनी जल्दी इतने हस्ताक्षरों का जुगाड़ करना आसान नहीं होगा। ऐसे में अध्यक्ष पद को लेकर सस्पेंस बरकरार है। हालांकि संघ के दबाव के कारण नितिन गडकरी की दावेदारी कायम है। अफवाहों का बाजार गर्म है। एक खेमा का कहना है कि राजनाथ सिंह चुनाव लड़ेंगे, तो दूसरे खेमा का कहना है कि यशवंत सिन्हा ने पर्चा भरने के लिए नामांकन पत्र मंगाया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर नितिन गडकरी अध्यक्ष बनेंगे तो जो आरोप उनके ऊपर लगे हैं वो आरोप कैसे साफ होंगे। कैमरामैन राजेश तिवारी के साथ मैं रजनीश त्रिपाठी, चैनल 1 न्यूज, दिल्ली। तो नितिन गडकरी का रास्ता बहुत आसान नहीं दिखता है। उनके रास्ते में लगातार रोड़े अटकाने की कोशिश की जा रही है और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में बीजेपी नेता डॉक्टर संबित पात्र, वरिष्ठ पत्रकार ओमकार चौधरी और साथ ही कांग्रेस नेता शादीलाल बत्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि बीजेपी की तरफ से आरोप भी लगा है कि केंद्र सरकार के इशारे पर नितिन गडकरी की कंपनी पर छापेमारी हो रही है। तो डॉक्टर संबित पात्र, बड़ा आसान सा लग रहा था कल परसों तक के नितिन गडकरी के रास्ते में कोई चुनौती नहीं है, कोई रोड़ा नहीं है, दोबारा से अध्यक्ष आसानी से बन जाएंगे। अचानक क्या हुआ ये? देखिए यूसुफ साहब, ऐसा है कि यह पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र का विषय है जी। कौन अध्यक्ष बनता है, कौन नहीं बनता है, क्या प्रक्रिया चल रही है, यह पार्टी का आंतरिक विषय है। इस पे अधिक खुलासे के साथ मैं यहाँ मंच पे बात करना नहीं चाहूँगा। स्वाभाविक है, ये पार्टी का आंतरिक विषय है, उसे अंदर ही रहने दिया जाए
और चूंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में इस प्रकार की जो प्रक्रिया है यह बहुत स्वस्थ प्रक्रिया है। लोकतंत्र में चर्चा हो, लोकतंत्र में इंट्रोस्पेक्शन हो और लोकतंत्र में कॉन्सेंसस हो और उसके माध्यम से नेता चुना जाए, यह बहुत ही स्वस्थ प्रक्रिया है। मैं तो भाजपा को मुबारकबाद देता हूं कि इतने बढ़िया तरीका से, लोकतांत्रिक तरीके से वो अपना चुनाव कराती है, बनिस्बत कांग्रेस जहां उनके अध्यक्ष अवतरित होते हैं, हमारे यहाँ अध्यक्ष धूल मिट्टी से काम करने के पश्चात नेता बनते हैं और नेता चुने जाते हैं। ओमकार जी, किस तरह से आप देखते हैं इसको? उनका डॉक्टर सुमित पात्र का कहना है कि आंतरिक लोकतंत्र है, लेकिन क्या लगता नहीं को कहीं ना कहीं मैनेज किया जा रहा है नितिन गडकरी के लिए? जो दूसरे लोग पर्चा भरना चाहते हैं उन्हें बाहर टाला जा रहा है, वक्त बहुत कम दिया जा रहा है, ये कहाँ आंतरिक लोकतंत्र है? देखिए, कई पहलू हैं जी। एक तो मुझे लगता है कि कांग्रेस संघ की जो इच्छा है कि नितिन गडकरी दूसरे कार्यकाल के लिए आगे बढ़ें, तो सीबीआई के जरिए, आयकर विभाग के जरिए, दूसरे जो उनके अपने संस्थान और औजार हैं उनके जरिए एक प्रयास किया जा रहा है, एक हवा बनाने की कोशिश की जा रही है कि गडकरी ठीक आदमी नहीं है, उनका रास्ता रोकने की कोशिशें हो रही हैं। जो ताज़ा अभी गतिविधियां हुई हैं आयकर विभाग की, मेरे विचार से उसको इसी संदर्भ में लिया जाना चाहिए। कांग्रेस का दोहरा रवैया देखने को मिल रहा है। रॉबर्ट वाड्रा पर आरोप लगते हैं तो उसके खिलाफ कोई जांच के आदेश नहीं दिए जाते हैं, लेकिन अगर विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ किसी तरह का भी आरोप लगता है तो बहुत प्रोएक्टिव तरीके से सीबीआई भी, इनकम टैक्स विभाग भी, सतर्कता डिपार्टमेंट भी, तमाम जितनी एजेंसियां हैं वो एकदम सक्रिय हो जाती हैं। दूसरा पहलू है भारतीय जनता पार्टी के भीतर का। जी, बीजेपी के भीतर एक गुट है, एक क्या 2-3 गुट है जो संघ की इच्छा पूर्ति में बाधा बन करके खड़े हो गए हैं, और उनमें यशवंत सिन्हा भी हैं, राम जेठमलानी भी हैं, उनके सुपुत्र भी हैं, और कुछ ऐसे चेहरे भी हैं यूसुफ भाई जो पर्दे के सामने तो नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो पीछे से काम कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि जितना ये मामला उछले पूर्ति ग्रुप का और दूसरे, उतना अच्छा है, और संघ का जो प्रयास है जी उसमें पलीता लगाने के लिए बाकायदा कोशिशें हो रही हैं भारतीय जनता पार्टी के भीतर से भी। जी ओमकार जी, जो आपने बात कही संघ का पलीता लगाने के लिए कोशिश हो रही है, इस पर हम लौटेंगे चर्चा के लिए, लेकिन अभी एक जरा टिप्पणी लेते हैं शादीलाल बत्रा जी से, क्योंकि बत्रा जी, ये अभी ओमकार जी ने भी कहा कि कांग्रेस की दोहरी नीति है कि अगर कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ कोई मामला उठता है तो सीबीआई और दूसरी जो एजेंसियां हैं, इनकम टैक्स वगैरह, वो क्लीन चिट देने में लग जाते हैं, और अगर बीजेपी की तरफ से या विपक्षी नेताओं के बारे में कोई मामला उठता है तो जांच करने के लिए पीछे पड़ जाते हैं। और ये जो इनकम टैक्स के छापे पड़े हैं पूर्ति कंपनी पर, इसमें बताया जा रहा है कि कांग्रेस का हाथ है, जानबूझ के किया जा रहा है, बीजेपी लगातार बैठ के आरोप लगा रही है। ये ऐसी बात नहीं है जी। मैं एक बात कहना चाहूँगा, अगर कोई बेबुनियाद अपना इल्ज़ाम लगा दें, बेबुनियाद आरोप लगा दें, तो उनमें होती नहीं। इस बात आरोप लगाने की बात कर रहे थे, उससे कमेटी बनी, चर्चा हुई और कहने लगे कि सब ठीक है, और उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके लिए कि फर्दर इंक्वायरी हो। एक बात, अब बीजेपी में प्रधान कौन बने, ऐसे लोगों की कमेटी कोई बनाई गई जो उनकी मर्जी है, लेकिन कितने गुट नजर आ रहे हैं। एक ही तो आ रही है, अगर हवलदार से कहा जाए कि वो एसपी के लिए क्लीन चिट दे, तो हवलदार क्या करेगा? आपने, कांग्रेस ने उन लोगों की कमेटी बनाई जो कि हरियाणा सरकार में ही काम करते हैं, जिन्होंने उनके लिए पूर्ति वाली पे आना चाहते हैं। आज के फैसले में साबित कर दिया कि हरियाणा, शाहजीलाल जी उसे भूल जाइए, हरियाणा वालों को भूल जाइए। उन्होंने सिर्फ ये बताइए कि नितिन गडकरी की कंपनी पर अगर छापे पड़ रहे हैं तो इससे कांग्रेस क्या हित साधना चाहती है? क्या कांग्रेस का हाथ उसमें है? कोई लांछन नहीं लगा था, कोई बात नहीं थी, उन्होंने सबूत दिया। और फिर अगर आपको कोई था तो आगे सबूत देते, आगे आते, कार्रवाई करते, लेकिन बेबुनियाद आरोप लगाने से बात नहीं बनती। और एक काम कोई करना होता है तो ये देखें क्या है। आज जो गडकरी जी के खिलाफ इंक्वायरी चल रही है, वो कब से चल रही है? आज के इलेक्शन को नहीं है। कांग्रेस को उनके इलेक्शन पे वो चुने जाएं या और को चुने जाएं, कोई मतलब नहीं, वो बीजेपी का अपना काम है।
और बीजेपी अपने काम में विफल होने के बाद आरोप कांग्रेस पे लगाए कि कांग्रेस करा रही है, ये तो बड़ी मुश्किल है, दुर्भाग्य। जी, चलिए हम बीजेपी से पूछते हैं कि क्या मामला, कांग्रेस पे क्यों आरोप बीजेपी लगा रही है। देखिए, मुझे ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है यूसुफ साहब, पूरा देश देख रहा है और हर कोई जानता है कि किस प्रकार। डॉक्टर साहब हम ये जानना चाहेंगे कि अगर नितिन गडकरी को संघ बनाना चाहता है दोबारा अध्यक्ष, तो 2-3 दिन तक पहले तक मामला बिल्कुल ठीक ठाक था, आम सहमति लगभग थी उनके नाम पर, अचानक आडवाणी जी क्यों नाराज उस पर होते हैं? देखिए यूसुफ साहब, मैंने आरंभ में कहा था ये सब पार्टी के आंतरिक विषय है। आंतरिक विषय में क्या हो रहा है ना तो मैं इस विषय में जानता हूं, और अगर जानता भी होता तो मैं इन विषयों पे यहां चर्चा नहीं कर सकता हूं, क्योंकि एक लोकतांत्रिक पार्टी में, जैसे मैंने कहा, इंट्रोस्पेक्शन होना, आपसी चर्चा होना एक स्वस्थ विषय है। चर्चा के बिना कभी लोकतंत्र आगे नहीं बढ़ सकता। कौन व्यक्ति उचित है अध्यक्ष पद के लिए, कौन नहीं है, किस प्रकार चुना जाएगा, यह सब आंतरिक प्रक्रिया है पार्टी की, और लोकतंत्र में यह सब होता है। इसलिए इस विषय में बारंबार प्रश्न पूछने से कुछ नया मैं कह पाऊंगा मुझे नहीं लगता है। किंतु जहां तक पूर्ति ग्रुप पे इनकम टैक्स के छापे का विषय है, मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह दूं कि यह एक षड्यंत्र है कांग्रेस द्वारा रचित, क्योंकि वही जब रॉबर्ट वाड्रा कांग्रेस को क्या फायदा है इससे? अगर नितिन गडकरी के खिलाफ जांच होती तो कांग्रेस बीजेपी के नाम को खराब करने में, आपने अभी देखा शिंदे साहब ने किस प्रकार के बयान किए। उन्होंने पूरे बीजेपी और संघ को एक साथ मिलाकर उनके नाम को खराब करने का प्रयास किया हुआ है कांग्रेस ने। स्वाभाविक रूप से जहां कांग्रेस भय, भूख और भ्रष्टाचार से घिरी हुई है, जनता के बीच कांग्रेस आज मुंह दिखाने लायक नहीं है, चिंतन शिविर में चिंता कर रही है, यही चिंता कर रही है कि किस प्रकार से बीजेपी के नाम को षड्यंत्रों के माध्यम से मलिन किया जाए। ओमकार जी, जो अभी डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि इससे आंतरिक लोकतंत्र मजबूत होगा, तो बीजेपी में अध्यक्ष पद को लेकर के जो छेड़ा झपटी चल रही है, क्या वाकई इससे आंतरिक लोकतंत्र मजबूत होगा? कोई छीना झपटी नहीं चल रही यूसुफ जो साहब, हमारे यहाँ चुनाव चल रहा है। अगर लोकतंत्र में, भारत में अगर हम लोकसभा के चुनाव को छीना झपटी कहेंगे तो वो ठीक नहीं होगा लोकतंत्र। ओमकार जी, कितना मजबूत होगा लोकतंत्र इससे? देखिए, कुछ साल पहले की बात है जब हवाला प्रकरण हुआ था, तो उसमें बहुत सारे नेताओं के साथ साथ लालकृष्ण आडवाणी का नाम भी आया था। आडवाणी जी ने उस समय बहुत श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत किया था। उन्होंने न केवल लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया था, बल्कि ये घोषणा भी की थी कि जब तक ये आरोप निराधार साबित नहीं हो जाएंगे, तब तक मैं कोई भी पद नहीं लूंगा और संसद में प्रवेश नहीं करूंगा। तो सवाल ये है कि जो श्रेष्ठ उदाहरण लालकृष्ण आडवाणी ने पेश किया था, वो उदाहरण गडकरी साहब क्यों नहीं पेश करना चाहते हैं? गडकरी साहब ये ऐलान क्यों नहीं करते हैं कि जब तक मैं इन सारे आरोपों से पूरी तरह से पाक साफ नहीं हो जाऊंगा, तब तक मैं अध्यक्ष का पद का चुनाव नहीं ग्रहण करूंगा? तो ये राजनीति में कुछ आपको संदेश और संकेत देने होते हैं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी दोहरे मानदंड अपना रही है। एक तरफ तो वो भ्रष्टाचार के खिलाफ बढ़ चढ़ करके संसद में और संसद के बाहर आंदोलनों में शामिल होती है और बात करती है, और दूसरी तरफ अगर उसके पार्टी के अध्यक्ष के खिलाफ कोई ब्लेम लग रहा है, आरोप लग रहा है, तो उस पर वो इस संघ परिवार भी और बीजेपी के भी कुछ नेता इस पर एडामेंट हैं कि हम गडकरी जी को ही दोबारा अध्यक्ष का पद सौंपेंगे। मुझे लगता है कि लोकतांत्रिक जो एक प्रक्रिया है, जो प्रणाली है, उसमें कुछ संदेश और कुछ संकेत देने होते हैं देश की जनता को। अगर भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार नितिन गडकरी को दोबारा से अध्यक्ष पद बनाने के लिए एडामेंट है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पार्टी को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। जी डॉक्टर साहब, कुछ कहना चाह रहे थे आप? नहीं, मैं एक बहुत अहम विषय रखना चाहता था। पहली बात तो है, अभी तक चुनाव हुआ नहीं है, कौन बनेगा कौन नहीं बना यह विषय अभी का नहीं है, वो कल या परसों मालूम पड़ेगा, अभी इसके लिए इंतजार करते हैं। किंतु दूसरा अहम विषय है, अगर षड्यंत्रों के माध्यम से किसी व्यक्ति को सरकार घेरने का प्रयास करती है, तो इसका मतलब यह नहीं होता कि वह आदमी अपना राजनीतिक जीवन छोड़कर घर बैठ जाए। उस आदमी को राजनीति में रहकर, पटल पर रहकर ही युद्ध करना होगा और अपने आप को पाक साफ साबित करना होगा। और वही आडवाणी जी ने उस पे भी आ रहा हूं, पाक साफ साबित करना होगा और अपने आप को आगे बढ़ाना होगा, और नितिन जी वही कर रहे हैं। मैं बारंबार याद भी दिला रहा हूं कि नितिन जी वो व्यक्ति थे जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुद कहा कि किसी भी जांच एजेंसी का स्वागत है जो इन विषयों का जांच करना चाहे। अब मैं आडवाणी जी वाले प्रश्न का उत्तर देता हूं। देखिए, आडवाणी जी जैसे व्यक्ति, लालकृष्ण आडवाणी जी जैसे व्यक्ति, शास्त्री जी जैसे व्यक्ति, 2 लोग मर गए थे एक ट्रेन एक्सीडेंट में, जिसके कारण लाल बहादुर शास्त्री
शास्त्री जी ने भी इस्तीफा दे दिया था, किंतु कोल घोटाले में, कोल मामले में, स्कैम में प्रधानमंत्री स्वयं संलिप्त पाए जाते हैं, किंतु प्रधानमंत्री अपना दायित्व नहीं छोड़ते हैं। तो इस प्रकार से, इन प्रकार के कंपैरिजन से यह दिखाना कि नितिन गडकरी जी को पद छोड़ देना चाहिए, यह श्रेष्ठ कंपैरिजन नहीं है। नहीं, अभी आप ही ने कहा क्यों ओमकार जी, चलिए पूछते हैं शाहजीलाल बत्रा जी से पूछते हैं। बत्रा जी, जो अभी बीजेपी के हमारे साथी बोल रहे हैं डॉक्टर साहब के प्रधानमंत्री ने पद नहीं छोड़ा, तो नितिन जी क्यों पद छोड़े? आरोप प्रधानमंत्री पर भी लगे हैं। छोड़े या ना छोड़े ये तो उनकी मर्जी है जी। लेकिन एक बात है कि उनकी पूर्ति इंडस्ट्री कंपनी में क्या थे, कहाँ ऑफिस थे, कहाँ डायरेक्टर थे, कोई ऑफिस था कि नहीं था, जो भी है, लेकिन इंक्वायरी चल रही है, वो इंक्वायरी होगी। वो इंक्वायरी से चिंतित होकर कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस करा रही है। ये आज की बात नहीं है। ऐसे आरोप जो हैं वो निराधार हैं और वो उनको कहना चाहिए था कि वो अपनी सफाई देने के लिए इंक्वायरी पूरी होने दे। चिंता किस बात की? नहीं, बिल्कुल चिंता नहीं है शादीराम जी, कोई चिंता नहीं है, बल्कि मैं तो आपको याद दिला रहा था कि उन्होंने खुद ही कहा था कि जांच हो। बिल्कुल, इसमें कोई चिंता नहीं है, वो बिल्कुल वहां से दूध के धुले निकल कर आएंगे और किसी प्रकार का उन पर आप जो है कोई मढ़ नहीं सकेंगे आरोप, इसमें कोई चिंता नहीं है। किंतु विषय यह है कि जो षड्यंत्र आप कर रहे हैं, आप जो दोहरा मापदंड अपना रहे हैं, डॉक्टर साहब, वो विषय उनकी जांच हो रही है, ये विषय नहीं है। विषय ये है कि बीजेपी के अंदर जो घमासान है अध्यक्ष पद को लेकर, कहाँ घमासान है? आप बताइए कौन सा घमासान है? देखिए, राजनाथ सिंह की तरफ से बात यशवंत सिन्हा ने कहा। मैं आपको मुस्कुराते हुए एक विषय कहूं जी, आज सुबह तक न्यूज ये चल रहा था, देखिए गडकरी जी जो है बिल्कुल निर्विवाद ही घोषित कर दिए गए। इस पार्टी में लोकतंत्र कहाँ है? यहाँ तो कोई इलेक्शन ही नहीं होता है, ये लोकतंत्र कैसा है? अब जब कोई सुनने में आ रहा है कोई दूसरा पर्चा दाखिल कर रहा है, तो आप कह रहे ये देखो जी ये क्या हो रहा है पार्टी में, अब 2 लोग चुनाव लड़ेंगे। आप पहले तय कर लीजिए कि किसको लोकतंत्र कहना है। अगर चुनाव होता है तो उसको लोकतंत्र कहना है, या बिना चुनाव कंसेंसस होता है तो उसको लोकतंत्र कहना है। मैं अपने तरफ से और पार्टी की तरफ से स्पष्ट कर दूं, हमारे पार्टी में कोई द्वंद्व नहीं है। हमारे यहाँ सब कंसेंसस से चल रहा है। हमारे यहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया है बनिस्बत कांग्रेस, जहां केवल एक ही परिवार का राज है। हमारे यहाँ सब मिलजुल कर कलेक्टिव लीडरशिप में विश्वास करते हैं और उसी के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। ओंकार जी, अभी शाम को एक मुंबई में एक फंक्शन था जहां पर आडवाणी जी और नितिन गडकरी एक साथ थे और दोनों की बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि दोनों एक दूसरे से खींचे हुए हैं। आडवाणी जी नितिन गडकरी की तरफ वो नहीं देख रहे थे और नितिन गडकरी बहुत सहज महसूस कर रहे थे उनके वहाँ बैठ के। ऐसे में क्या पार्टी वाकई आगे बढ़ पाएगी अगर ये अविश्वास 2 बड़े नेताओं में है? देखिए, मैंने कहा था कि जब आप सर्वोच्च पदों पर होते हैं तो आपको राजनीति में उच्च मानदंड स्थापित करके अपने कार्यकर्ताओं को भी और देश की जनता को भी कुछ उदाहरण देने होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि संघ परिवार जिस तरीके से एडामेंट है नितिन गडकरी को अध्यक्ष बनाने को लेकर के, इसके कोई बहुत स्वस्थ संकेत उनका अपना कैडर भी ग्रहण नहीं कर रहा है। और आडवाणी जी खेमे से जो भी सूचनाएं आ रही हैं जी, उनका लब्बो-लुआब यही है यूसुफ भाई जी कि वो इस चीज को बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं। क्या कुछ नेता लगता है कि जैसे बंगारू लक्ष्मण संघ की तरफ से आए थे, संघ के प्रचारक थे, उनको ऊपर आरोप लगा कि उन्होंने रिश्वत ली है, कुछ स्टिंग ऑपरेशन में वो फंसे थे। उसके बाद से नितिन गडकरी को संघ की मर्जी से लाया गया, अध्यक्ष बनाया गया। और अगर ये भी चले जाएंगे तो हमेशा के लिए कि एक पैरामीटर बन जाएगा कि संघ की तरफ से जो आदमी आता है उस पर भ्रष्टाचार के आरोप ही लगते हैं और आगे उसके लिए मुश्किल होगी। क्या ये कहीं डर है? नहीं, संघ की बड़ी शानदार पृष्ठभूमि रही है। अगर आप देखें तो संघ ने कभी भी भ्रष्टाचार को, भ्रष्टाचारियों को और जो भी इस तरह के आचरण करने वाले हैं उनको कभी रिकॉग्नाइज नहीं किया है जी। और अगर आप जाकर के देखें आदिवासी क्षेत्रों में जो आपके पिछड़े क्षेत्र हैं उनमें बहुत शानदार काम किया है संघ परिवार ने। उनका कैडर है जो लगातार ऐसे दीनहीन लोगों के लिए चाहे एजुकेशन हो चाहे उनके दूसरे काम हो, इस तरह के वेलफेयर के काम बहुत अच्छे किए हैं। लेकिन ये पहली बार हम देख रहे हैं कि जिस पर आरोप लग रहे हैं उसको संघ परिवार जो है वो बैक कर रहा है। मैं कहता हूं कि जो भी आरोप लग रहे हैं वो पूरी तरह फर्जी हैं और वो एक तरीके से खड़े किए हुए आरोप हैं। लेकिन इसमें क्या हर्ज है कि जिस पर वो आरोप लग रहे हैं वो आगे आए, आगे आकर के
एक स्वस्थ परंपरा का निर्वहन करे और कहे कि जब तक इन आरोपों से मैं पाक साफ नहीं होऊंगा तब तक अध्यक्ष का पद ग्रहण नहीं करूंगा। मुझे लगता है कि इससे श्रेष्ठ उदाहरण और क्या पेश किया जा सकता है। जी, जो यशवंत सिन्हा चुनाव लड़ने की जिद कर रहे हैं नितिन गडकरी के खिलाफ, उन्होंने नितिन गडकरी से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस्तीफा मांगा था, राम जेठमलानी ने इस्तीफा मांगा था। तो अगर बीजेपी के बड़े नेताओं के बीच ही विश्वास नहीं होगा नितिन गडकरी की लीडरशिप में, तो डॉक्टर साहब पार्टी कैसे आगे बढ़ पाएगी? अगर बड़े नेता पार्टी के हैं वो विश्वास में रहेंगे? नहीं, देखिए आपने जो कहा अभी विषय अविश्वास का, ये मुझे लगता है आपके यहाँ एक ऐसी भावना उपजी है कि अविश्वास है, किंतु पार्टी के अंदर अविश्वास का कोई विषय नहीं है। यह बिल्कुल एक किंवदंती है, इसके आधार पर हमें कोई भी चर्चा नहीं करनी चाहिए। हम सब एक हैं और कलेक्टिव लीडरशिप के आधार पर ही हम आगे बढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल भी इस विषय को लेकर हमें कभी विचलित नहीं होना चाहिए। चलिए डॉक्टर साहब, हम उम्मीद करेंगे कि आपकी पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक रहेगा और हम बिल्कुल 2014 में सरकार बनाएंगे। जी, आपकी आप इस उम्मीद पे खरा उतरे और जो 2014 में होगा वो देखा जाएगा। फिलहाल इस चर्चा में आप शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ओमकार चौधरी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शादीलाल बत्रा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस चर्चा में शामिल हुए। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। दोस्तों, न्यूज़लैंड में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी किसी और मुद्दे और कुछ और मेहमानों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी यूसुफ अंसारी को इजाज़त दीजिए। नमस्कार। कुंभ प्रयाग 2013 के शुभ अवसर पर आपका हार्दिक स्वागत है। ऐसा परमानंद बैकुंठ में भी नहीं जो प्रयाग की धरती पर सभी संत, भक्त और भगवंतों द्वारा सुशोभित हो रहा है। कुंभ की तारीख 14 जनवरी से 10 मार्च। इस माघ मास में पुण्यों के भागीदार बने, कुंभ में आए, पुण्य कमाएं। स्वर्णिम मध्य प्रदेश की पहचान समृद्ध किसान। कृषि को लाभकारी धंधा बनाने का मुख्यमंत्री का सपना अब हुआ साकार। 0% ब्याज दर पर 65 लाख किसान परिवारों को लाभ पहुंचाने हेतु 10,000 करोड़ के फसल ऋण वितरण का लक्ष्य। अपेक्स बैंक। PACL इंडिया लिमिटेड पेश करते हैं पर्ल्स रेजिडेंसी मोहाली, पर्ल्स सिटी मोहाली, पर्ल्स रॉयल गार्डन सीहोर, पर्ल्स गेटवे मदुरई, पर्ल्स टाउनशिप भटिंडा, पर्ल्स रिवेरा कोचीन, पर्ल्स गेटवे टावर नोएडा और पर्ल्स